Good morning, children. Welcome to the second lecture of People as Resource. So in the last lecture, we were discussing about the human resource, in which we talked about that every human being living on earth is a resource, right? So we saw two conditions. One, that a person can be an asset और अ पर्सन कैन बी अ लायबिलिटी. एक पर्सन जो है हमारी संपत्ति भी हो सकता है और वो हमारे ऊपर बोझ भी बन सकता है. इफ द पीपल हैव अ राइट एजुकेशन, अ राइट हेल्थ, then that people become an asset. If one person have not a proper education as well as skill to do work, that person become liability. Then we talked about the stories of Sakal and Vilas, through which we understood how these two friends, one become a very good engineer, at the same time his friend become a liability on the country. He is not able to earn money. So uh, this we understood through this true story. Then we talked about economic activities by men and women, that how the work of men and women are divided. Certain works are, you can say, historically from ancient times, certain work are allotted to men and certain works are allotted to women, right? So it is not right. Nowadays, every work can be done by men and women both, right? Then we talked about the three sectors of economy, that in our economic activities, we have three types of works. The first one is primary, second one is secondary, and the third one is tertiary sector. So you already know the definition of it. Then we talked about the market activities and non-activities. That means non-market activities. So I told you that all the activities which include the transactions of money or any production which happened to earn money or to sell in the market comes under the market activities, right? And those activities which is meant for self consumption comes under non market activities. And lastly, we discussed about the division of labor between men and women, right? That how certain works are decided for men and certain works are decided for women. Now today we are going to talk about the quality of population. So quality of population means the people who are living in our country had certain types of qualities, right? That means certain people's having good qualities, right or not? Certain people have not. कुछ लोगों के पास अच्छी क्वालिटीज होती है, कुछ लोगों के पास नहीं होती है, राइट? नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन. हमारे कंट्री में जो लोग रह रहे हैं उसके क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? To increase the quality of population, we need to give certain types of investment. For example, the people should be literate, right? The people should have good health, they have skills, right? They should be a higher life expectancy, right? So all these factors decide the quality of population. एक कंट्री में जो लोग रह रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, अच्छी है या फिर अच्छी नहीं है, ये किस बेसिस पर डिसाइड होता है? उस पॉपुलेशन का जो एजुकेशन है या हेल्थ है वो कैसा है, उसके बेसिस पर डिसाइड होता है. सो बिफोर वी स्टार्ट विद दिस क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, let's understand these two definitions, literacy rate and gross enrollment ratio. So the meaning of literacy rate is the total percentage of population of an area. एक एरिया में कितना पॉपुलेशन रह रहा है उसका परसेंटेज निकालना है उन सभी लोगों का, those who are aged above 7 years, 7 साल से ऊपर के सभी लोगों का ये परसेंटेज निकालना है कि कितने लोग उसमें से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और समझ सकते हैं किसी भी एक लैंग्वेज के. द पर्सन हु कैन रीड, राइट एनी वन लैंग्वेज विथ अंडरस्टैंडिंग, इसी को हम क्या बोलते हैं? लिटरेसी रेट बोलते हैं, right? It means that
every person who are above age of 7 years, वे सभी लोग जो 7 साल से ज्यादा उम्र के हैं, अगर वो किसी भी एक लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, राइट, लिख सकते हैं विथ अंडरस्टैंडिंग, उसको हम क्यों क्या बोलेंगे, लिटरेट पर्सन बोलेंगे, राइट। सेकेंड वन इज ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो कहते हैं किसी एक लेवल को हम डिसाइड करते हैं और नंबर गिनते हैं बच्चे का कि कितने परसेंट बच्चे जो है उस लेवल में एडमिशन लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी कंट्री में कितने परसेंट बच्चे हैं जो कि हायर एजुकेशन में जाते हैं, राइट, ठीक है। टेक एन एग्जाम्पल कि हमारी कंट्री में हायर एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कितना है, 23% है। इट मीन्स दैट कि जितने भी बच्चे, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 23% बच्चे बैचलर डिग्री लेते हैं या फिर मास्टर डिग्री लेते हैं। दैट मीन्स +2 के बाद ग्रेजुएशन करते हैं या फिर मास्टर डिग्री लेते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन, राइट। ओके, नाउ let's move to the topic. The first question is, what is the role of education? What is the role of education in making a quality population? देखो, एग्जाम्पल आपने पहले ही देखा सकल के बारे में। सकल ने क्या हुआ, सकल ने क्या किया था, he got education, right? He read, you can say कि उसने काफी अच्छे से पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद उसको क्या हो गया, एक अच्छा जॉब मिल गया और उसको एक अच्छी सैलरी भी मिलने लगी। ये क्यों पॉसिबल हो पाया, क्योंकि ही टेकन एजुकेशन, अ गुड एजुकेशन टेकन बाय हिम, राइट और नॉट। इसके अलावा सकल ने जो एजुकेशन लिया उसकी वजह से क्या हुआ, सोसाइटी को भी कुछ कंट्रीब्यूशन मिला, सोसाइटी भी थोड़ा ग्रोथ में गई। कैसे, हमारे कंट्री का इनकम बढ़ गया, नेशनल इनकम बढ़ गया, क्योंकि सकल जो है ज्यादा पैसा कमाने लगा, टैक्स भी पे करने लगा, राइट और नॉट। हमारे कंट्री की कल्चरल रिचनेस भी बढ़ गई, राइट और नॉट। अब वो नया नया चीज आविष्कार कर रहा था या फिर कहीं घूमने जा रहा था तो वहां पर पैसा स्पेंड कर रहा था। अपार्ट फ्रॉम दिस, ही बिकम अ अवेयर सिटीजन। अब वो पढ़ा लिखा इंसान है, अगर उसके राइट्स कभी वायलेट होंगे तो वो क्या करेगा, अपने राइट्स को लेने के लिए कोर्ट में जाएगा, राइट और नॉट। तो इससे क्या हुआ, हमारे कंट्री का जो गवर्नेंस है, हमारे कंट्री का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भी इम्प्रूव हुआ। सो एजुकेशन के कई सारे फायदे हैं, राइट डाउन, आप अपने से सोच के लिखना कि एजुकेशन के क्या क्या फायदे हैं, राइट। देन व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द एजुकेशन इन आवर कंट्री। हमारे कंट्री में एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। देखो, सबसे पहला स्टेप्स क्या है, गवर्नमेंट ने कई सारे ऐसे प्रोविजंस बनाए हैं जो बोलता है कि सभी लोगों को एजुकेशन मिलना चाहिए, यूनिवर्सल एक्सेस मिलना चाहिए, with quality in elementary education with a special emphasis on girls, right। गवर्नमेंट का कहना है कि एलिमेंट्री एजुकेशन तो सभी को मिलना ही चाहिए, राइट और नॉट। और स्पेशल एम्फेसिस गवर्नमेंट दे रही किसके ऊपर, गर्ल्स के ऊपर। देन गवर्नमेंट एस्टेब्लिश डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूल्स लाइक नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, राइट और नॉट, इन मेजर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आवर कंट्री। Apart from this, government also introduce vocational streams. Vocational streams मतलब the type of knowledge through which students can get any types of occupation. That means occupation related education. जैसे आज के डेट में जो है कई सारे ऐसे एजुकेशन है, जैसे कई सारे लोग क्या करते हैं, बीटेक करते हैं, राइट। सो ये ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है। कई सारे लोग आईटीआई करते हैं, ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है। कई सारे लोग बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। सो दीज ऑल आर ऑक्यूपेशन रिलेटेड नॉलेज एंड स्किल्स, राइट। देन गवर्नमेंट ने सर्व शिक्षा अभियान को इंट्रोड्यूस किया। व्हाट इज सर्व शिक्षा अभियान? दिस सर्व शिक्षा अभियान हैव द टारगेट टू रीच ऑल द चिल्ड्रेन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। 6 से 14 साल के बच्चे को, सभी को एजुकेशन मिलना चाहिए, ये इसका ऑब्जेक्टिव है सर्व शिक्षा अभियान का। फ्री एजुकेशन दिया जाता है सभी लोगों को। देन गवर्नमेंट ने मिड डे मील स्कीम इंट्रोड्यूस किया। व्हाट इज मिड डे मील स्कीम? इन मिड डे मील स्कीम द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग फूड टू द चिल्ड्रेन, टू द पुअर किड्स इन गवर्नमेंट स्कूल। तो आपने देखा होगा कई सारे
गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील स्कीम प्रोवाइड किया जाता है ताकि बच्चे का हेल्थ भी बना रहे और वो एजुकेशन भी ले सके। इसके अलावा गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। तो आपने आंगनवाड़ी का नाम सुना होगा, जहां पर छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, है ना। वहां पर ये बच्चे को क्या, एक तरह से यू कैन से इट इज अ प्ले स्कूल फॉर पुअर किड्स, राइट। वहां पर बच्चे को पढ़ाया भी जाता है और बच्चे को खाना भी दिया जाता है, राइट। देन हमारी कंट्री का जो एक्सपेंडिचर है एजुकेशन के ऊपर, कि हमने शिक्षा के ऊपर जो खर्च कर रहे हैं, वो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इट वाज 151 करोड़, राइट। बट नाउ इट इज अप्रोक्सीमेटली 3766.90 करोड़। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। पहले 151 करोड़ ही था, लेकिन अभी कितना हो गया, लगभग 3500 करोड़, राइट। देन जो हमारा एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर है वो जीडीपी के मामले में 1951 में 0.64% था। हमारे कंट्री का जो जीडीपी था उसका 0.64% था, बट इन नाउ इट इज अप्रोक्सीमेटली 3% ऑफ टोटल जीडीपी, राइट। तो हमारे कंट्री में जो बच्चे का एडमिशन है हायर एजुकेशन में वो भी इंक्रीज हुआ है। कई सारे बच्चे जो कि 18 से तो 23 ईयर्स के एज के हैं, ठीक है। आज के डेट में अप्रोक्सीमेटली 24 to 25% बच्चे हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं। दैट मीन्स दे आर डूइंग देयर बैचलर्स, देयर मास्टर्स, राइट और नॉट। हमारा ये टारगेट है कि अगले साल तक ये 30% हो जाए, ठीक है। कि सारे बच्चे, जितने भी बच्चे पढ़ाई करते हैं, जो +2 कर लिए हैं, कई बार वो लोग +2 करके ही छोड़ देते हैं, राइट और नॉट। अभी तक आपने देखा शकल के बारे में, जब मैं पढ़ा रहा था आपको, तो शकल के एक अंकल थे। अंकल ने क्या किया था, 10th पास करके ही घर में बैठ गया था, राइट और नॉट। सो इज इट वर्थ इट कि कोई बच्चा 10th पास करके ही घर पे बैठ जाए? नहीं। तो हमारा ये टारगेट होता है कि हर एक बच्चा जो है 10th पास करे, 12th पास करे, उसके बाद वो बैचलर डिग्री भी ले, मास्टर डिग्री भी ले, राइट और नॉट। आज हमारे कंट्री में मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, अगर 100 बच्चे क्लास 10th पास करते हैं, तो इस 100 में से ओनली 24 बच्चे जो है ये बैचलर में या फिर मास्टर में एडमिशन लेते हैं, मास्टर एमए करते हैं या फिर बीए बीएससी करते हैं, राइट और नॉट, बीटेक करते हैं, एमटेक करते हैं, ठीक है। तो ये काफी कम नंबर है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा, राइट। ओके, नेक्स्ट इज आवर सम ऑफ द डेटा, इट इज रिटन ओवर ईयर। थोड़ा सा डेटा को देखो, हमारे कंट्री में जो लिटरेसी रेट है वो 18% से इंक्रीज होकर 74% हो गया है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ये कितना था, 18%, आज ये कितना है, लगभग 74% से प्लस है, राइट। जो लिटरेसी रेट है मेल्स में वो फीमेल से हाइयर है, ठीक है, 16.6% हाइयर है, ठीक है। सो फीमेल का लिटरेसी रेट आज की डेट में लगभग कितना है, 54 या 56% है, चेक इट वंस, ठीक है, इतना ही लगभग, राइट। इसके अलावा जो अर्बन एरियाज है, जो शहर वाले एरियाज हैं, वहां पर लिटरेसी रेट ज्यादा है कंपैरिजन टू द रूरल एरियाज। इन 2011 कई सारे स्टेट्स हैं जहां पर की काफी ज्यादा लिटरेसी रेट है, जैसे केरला में 94% है और बिहार में ओनली 62%। इट मीन्स दैट केरला में 94% पीपल, 100 में 94 लोग क्या है, पढ़े लिखे हैं, और बिहार में सिर्फ 62 लोग पढ़े लिखे हैं, राइट। सो इट इज वेरी लो। देन इन आवर कंट्री आवर स्कूल सिस्टम हैज एक्सपेंडेड, कई सारे स्कूल्स, नए नए स्कूल्स खुले हैं, राइट। बट देयर इज अ लिमिटेशंस, कई सारे स्कूल्स की प्रॉब्लम है कि वहां पर पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दिया जाता है। पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मतलब ठीक से पढ़ाई नहीं होती है, बच्चे स्कूल आते हैं, खेलते हैं, घर चले जाते हैं, राइट और नॉट। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि हमारी जो हमारी स्कूल एजुकेशन सिस्टम है उसमें हाई ड्रॉप आउट रेट होते हैं। हाई ड्रॉप आउट रेट का मतलब कि बच्चे जो है फर्स्ट क्लास में, ठीक है, क्लास 1 में अगर 100 बच्चे हैं, ठीक है, तो यही क्लास 10th आते आते ये बच्चे कितने हो जाते हैं, 30 हो जाते हैं या फिर 35 हो जाते हैं, राइट और नॉट। सो आप अपने स्कूल का एग्जांपल देख लो। इफ यू लुक एट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास फर्स्ट और सेकेंड, और प्राइमरी सेक्शन में अगर आप नंबर देखोगे तो ये लगभग कितना होता है, 55 से 60 नंबर होते हैं हर एक क्लास में, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप क्लास 6, 7, 8, 9 में जाओगे, देखोगे 10th में जाते जाते आज 10th का स्ट्रेंथ कितना है, 35 है ओनली,
राइट और नॉट? आपके क्लास का भी स्ट्रेंथ कितना था लास्ट ईयर? 37, ठीक है। तो ये इतना नंबर कम क्यों हो जाता है? क्योंकि कई सारे बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, राइट और नॉट? छोड़ देते हैं बीच में एजुकेशन, राइट। सो ये ड्रॉप आउट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे क्लास 1 से 8 तक पढ़े उसके बाद छोड़ दिया, राइट और नॉट? ये टोटल क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा, राइट। देन हियर यू कैन सी हियर सम डेटा इज गिवन। ये ग्राफ दिया हुआ है, आपको देखना है इस ग्राफ में कि किस तरह से जो है लिटरेसी रेट है हमारे कंट्री में, मेल का कितना है, फीमेल का कितना है। तो लुक एट हियर 1951 में मेल का कितना था? अप्रोक्सीमेटली 28%, है ना। फीमेल का कितना था? अप्रोक्सीमेटली 8%। सो कितना कम है फीमेल का, राइट और नॉट? ये एवरेज है दोनों का मिला के, ब्लू कलर वाला, राइट। ठीक है, कितना है? 18% लगभग है। सो उसी तरह यहाँ पर आ जाओ 2011 में फीमेल का लिटरेसी रेट कितना है? अप्रोक्सीमेटली 65%, राइट। और मेल का कितना है? 82%, राइट। और हमारा एवरेज कितना है? 74%। सो हमेशा देखो यहाँ पर कि जो मेल की जो लिटरेसी रेट है वो हाई है कंपैरिजन टू द फीमेल। सो स्टडी द ग्राफ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे हुए हैं, राइट। आप इसको ट्राई टू सॉल्व इट एंड वी विल डिस्कस इन द ऑनलाइन सेशन, राइट। देन कमिंग टू नेक्स्ट वन, एक और ग्राफ दिया हुआ है, एक टेबल दिया हुआ है, देखो यहाँ पर। This table is showing that number of institution of higher education, enrollment and faculty। मतलब हायर एजुकेशन मतलब कितने कॉलेजेस हैं हमारे कंट्री में, कितने यूनिवर्सिटीज हैं और उसमें स्टूडेंट्स कितने हैं, राइट। तो 1951 में सिर्फ 750 कॉलेजेस थे हमारे कंट्री में, अभी कितना हो गया है? 41,012, राइट। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना था उस समय? 2,63,000। अभी कितना हो गया है? अप्रोक्सीमेटली 3,66,42,378, right or not? So number of students also increased, number of teachers also increased, right? But the question is कि जिस तरह से स्टूडेंट का नंबर बढ़ा है क्या उस तरह से कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और टीचर्स के नंबर बढ़े, राइट और नॉट? कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टूडेंट का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया और कॉलेजेस के नंबर बहुत कम रह गए, राइट और नॉट, कंपैरिजन टू। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाएगी, कई सारे बच्चे ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, राइट और नॉट? सो look at these questions, maybe I will ask in the online classes, right? Read that one and try to solve it, and I hope that's enough for today. Next topic we will discuss tomorrow. Thank you, have a nice day.